عربی زبان میں خواتین سے بات کرتے ہوئے الفاظ اور لہجے میں خاص فرق ہوتا ہے۔ مؤنث کی پہچان کیسے کی جائے، اس ویڈیو میں آپ کو یہ آسانی سے سمجھایا جائے گا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربی میں مؤنث کے لیے مختلف الفاظ اور جملے استعمال ہوتے ہیں۔ خواتین کے ساتھ بات چیت کے دوران عربی میں احترام اور نزاکت کیسے شامل کریں، آج آپ اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ اگر خواتین سے بات کرتے ہوئے جملے کا انداز غلط ہو جائے تو معنی میں فرق آ سکتا ہے، اس لیے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کے بعد آپ عربی میں خواتین کے ساتھ درست اور مہذب انداز میں بات کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، کیسے مزاج ہے آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے عبدالواحد بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن عربک ود واجد۔ تو دوستو، ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی ایک نیا کنٹینٹ آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں کہ جو لوگ خواتین سے بات کرنے میں کرہاتے ہیں یا خواتین کے لیے جو عربک میں جملہ بنایا جاتا ہے اس کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ کیونکہ اکثر ہمارے ایسے بھی ویور ہیں جو کہ کسی فیمیل کفیل کے پاس کام کر رہے ہیں، لیکن وہ خاتون کا اور مرد کا جو فرق ہے وہ نہیں پہچان پاتے۔ خاتون کو بھی مرد والے جملے بولتے ہیں اور مرد کو جو ہے وہ تو آلریڈی بول ہی رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ جو ہے تقریباً 30 جملے جو ہے جو میں نے بڑی محنت کے ساتھ تیار کیے ہیں، جس میں آپ سیکھیں گے کہ کس طرح خواتین کے ساتھ لوکل سپوکن عربک جو کہ خلیج میں، سعودی عرب، عمان، مسقط، قطر، کویت میں بولی جاتی ہے۔ ایک ایک لفظ پر بڑی ہی محنت کر کے آپ لوگوں کو سکھایا گیا ہے۔ تو یہ جو شارٹ سا کورس ہے، اگر یہ آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں میں اتنی تو اویئرنیس آ جائے گی کہ مذکر اور مؤنث میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ وین کنتی امس، وین کنتی امس، کل کہاں تھیں؟ ویئر ور یو یسٹرڈے۔ وین کا مطلب ہوتا ہے کہاں، کنتی یعنی کہ تھی، اور امس جو ہے کل کو کہتے ہیں جو کہ گزر چکا ہے، یعنی کہ یسٹرڈے۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، کیونکہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آج کی ویڈیو مذکر اور مؤنث کے بارے میں ہے، اور کنتی جو ہے ہمیشہ فیمیل کے لیے کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کنتی سے سب سے پہلے مراد تو یہ ہے کہ یہ پاسٹ سینٹینس ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کنت تھا اور کنتی وہ تھیں، یعنی کہ مؤنث کے لیے بولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو میل کے لیے بنائیں گے تو ہم کہیں گے وین کنت امس، ٹھیک ہے، یعنی کہ کل کہاں تھے۔ اور اگر فیمینن کے لیے کہیں گے تو وین کنتی، یعنی کہ کل کہاں تھیں۔ تو دوستو، ساتھ میں جو میں آپ لوگوں کو یہ ساتھ میں موٹیویشن دیتا ہوں، ایکسپلینیشن دیتا ہوں، اگر اس میں تھوڑی سی ویڈیو اگر آگے ہو جاتی ہے آدھا منٹ یا 1 منٹ، تو کائنڈلی آپ اس کا برا مت منایا کریں، کیونکہ ایسی بہت سی ویڈیوز یا ایسے بہت سے چینل پڑے ہیں یوٹیوب پر جو کہ آپ لوگوں کو صرف ٹرانسلیشن سکھا رہے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے، پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کو اس لیے سمجھاتا ہوں کیونکہ اکثر لوگ آپ میں سے جو ہے وہ بگنرز ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ کافی سالوں سے عرب میں رہ رہے ہیں لیکن ان کا جو عربک بولنے کا انداز ہے وہ کافی بگڑا ہوا ہے۔ تو اگر میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی موٹیویشن دیتا ہوں یا سمجھاتا ہوں تو آپ اس بات کا برا نہ منایا کریں کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے یا آپ لوگ جو ہے بہت پہلے سمجھ چکے ہیں، کیونکہ آپ میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہ بالکل فریش ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان باتوں کا بھی سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کچھ ایسے کلپس آ جاتے ہیں یا کچھ ایسی سینٹینسز آ جاتے ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو چلیں، یہ پہلا سینٹینس تھا وین کنتی امس، یعنی کہ کل کہاں تھیں، ویئر ور یو یسٹرڈے۔ تو چلیں اب دوسرے سینٹینس کی طرف جاتے ہیں۔ تو دوسرا سینٹینس ہے آج کیا کیا، یعنی کہ شنو سویتی الیوم، واٹ ڈیڈ یو ڈو ٹوڈے۔ اچھا، یہاں پر شنو جو ہے اس لیے لگایا گیا ہے کیونکہ کافی جو ہمارے ویورز ہیں وہ UAE سے ہیں، قطر، عمان، مسقط سے، تو وہاں پر شنو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سعودی عرب سے ہیں تو آپ اس میں ایش بھی کہہ سکتے ہیں، ایش سویتی الیوم، ٹھیک ہے، یعنی کہ آج کیا کیا۔ اردو میں تو اس کا سیم مطلب ہے، لیکن عربک میں دیکھ لیں کہ سویتی کہا گیا ہے۔ اگر یہاں پر میل ہوتا تو ہم کہتے شنو سویت الیوم، ٹھیک ہے، صرف تا تک آپ نے جو ہے رک جانا ہے۔ اگر تا کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں یا لگا دیتے ہیں تو بن جائے گا سویتی، ٹھیک ہے، شنو سویتی الیوم۔ اور اگر یہ سعودی میں ہوتا تو اس میں لوکل میں کہتا ہے ایش سویتی الیوم،
ठीक है, यानी कि आज क्या किया, व्हाट डिड यू डू टुडे। क्या तुम मार्केट जाना चाहती हो, तबीन तरोहीन अल सूक, डू यू वांट टू गो दी मार्केट। अब यहाँ पर तबीन का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर जो है अरब में अगर अब सऊदी अरब में है तो हम बोलेंगे तबगीन, ठीक है। तबीन ये जो है अमारात में, यूएई में यहाँ पर बोला जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर मेल के लिए कहेंगे तो हम बोलेंगे तिबा 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 तरोह अलसूक, ठीक है। अगर फीमेल है तो हम बोलेंगे तिबीन तरोहीन अलसूक, क्या तुम मार्केट जाना चाहती हो। अब यहाँ पर देखें कि उर्दू में भी जो है मुअन्नस की जो है ट्रांसलेशन हुई है और अरेबिक में भी मुअन्नस के बारे में ही कहा गया है, ठीक है। अगर जुमला पसंद आए तो उसको लाइक करें। चलिए अब हम अगले जुमले की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लर्न अरेबिक विद वाजिद की जानिब से नया ऑनलाइन कोर्स 12 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। ये कोर्स 2 महीने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और काम में लोकल स्पोकन अरेबिक सीख कर बेहतरी लाना चाहते हैं। और अगर इस कोर्स के दौरानिया के बारे में बात करें तो इसका दौरानिया 2 महीने है। 2 महीने में जो है आप लोगों को अरेबिक सिखाई जाएगी और इसका जो फॉर्मेट है वो ऑनलाइन आपको सिखाई जाएगी जूम एप्लीकेशन पर या गूगल मीट पर। और आपको हर वो जुमले सिखाए जाएंगे जो कि आप काम पर बोलते हैं या आप बाज़ार में जाकर बोलते हैं, ग्राहकों के साथ बोलते हैं, या आप अपनी किसी वर्क प्लेस पर अगर आप किसी कस्टमर को जो है डील करते हैं तो हर वो जुमला आप लोगों को सिखाया जाएगा। और ड्राइवर की फील्ड में जो जुमले इस्तेमाल होते हैं वो भी आपको सिखाए जाएंगे। और कारोबारी अफराद के लिए भी ये कोर्स बहुत मुफीद है, उनके लिए भी बहुत से जुमले ऐसे हैं जो कि कारोबारी लाइन में बोले जाते हैं। तो मज़ीद डिटेल्स हासिल करने के लिए हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और 12 जनवरी से पहले अपनी फ़ीस सबमिट कराकर इस कोर्स का हिस्सा बन जाए। बच्चे कब आएंगे, मता बिजून अल औलाद, व्हेन विल द किड्स कम। बच्चे कब आएंगे। अब देख लें कि ये 2 ख़वातीन आपस में इजीली बोल सकती हैं, इसमें जो है मुज़क्कर मुअन्नस का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये है कि जमा का जो है उसके बारे में बताया गया है। मता जो है कब कहते हैं, बीजून। देखिए अब बीजून यानी कि ईजी तीजी उन सब चीज़ों से निकल कर अगर आप लोग फ्रेश हैं तो शायद हो सकता है कि आपके लिए ये लफ्ज़ नया हो। बीजून यानी कि आएंगे, आएंगे, ठीक है। अल औलाद जो है वो बच्चों को कहा जाता है, ठीक है। बच्चे कब आएंगे। ये लिबास कहाँ से ख़रीदा, मिन वैन इश्तरेती अल फुस्तान, मिन वैन इश्तरेती अल फुस्तान। मिन वैन यानी कि कहाँ से। अब यहाँ पर मिन का जो है यहाँ पर मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा। मिन जो है लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मिन का मतलब होता है से। जैसे अब मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ, यानी कि आना मिन पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर मिन का इस्तेमाल होना भी बहुत ज़रूरी है। मिन वैन यानी कि कहाँ से। इश्तरेती यहाँ पर जो है पता लग रहा है कि किसी फीमेल को कहा गया है, ठीक है। इश्तरेती यानी कि ख़रीदा है। अल-फुस्तान यहाँ पर जो है फुस्तान का भी जो है आप लोगों को समझा दूँ, फुस्तान हमेशा फेमिनिन के लिए कहा जाएगा। और अगर हम इसको जुमले को मेल के लिए बनाएं यानी कि मुज़क्कर के लिए, किसी मर्द के लिए, तो हम कहेंगे मिन वैन इश्तरेत अल मलाबिस, ठीक है। मर्द के लिए मलाबिस कहा जाएगा और फेमिनिन के लिए अल-फुस्तान कहा जाएगा, ठीक है। मिन वैन इश्तरेती अल-फुस्तान यानी कि ये लिबास कहाँ से ख़रीदा। वेयर डिड यू बाय दिस ड्रेस। वीकेंड के लिए क्या मंसूबा बनाया। शनो खत्तत लिल वीकेंड। अब देखें शनो की जगह आप इश भी लगा सकते हैं। खत्तत यानी कि क्या मंसूबा बनाया। यहाँ पर बरनामिज भी बोल सकते हैं। अगर आप सऊदीया में हैं तो आप बरनामिज बोलेंगे, और अगर आप यूएई अरब अमारात या मतलब कि मस्कत या ओमान या कतर में हैं तो आप शनो बोलेंगे। ख़तत का मतलब जो है वो मंसूबा होगा। अब लिल वीकेंड जो है ये क्यों कहा गया है, क्योंकि अब अरब लोग भी जो है इंग्लिश बोलना शुरू हो गए हैं। वैसे अगर आप अरबी में बोलना चाहें तो इसकी जो है ट्रांसलेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसको कहेंगे निहायत सबूह, निहायत सबूह, निहायत सबूह यानी कि हफ्ते का जो आखिरी दिन होता है, हफ्ते का जो एंड होता है। लिल वीकेंड दोबारा से सुन लें। शुनो खत्तत लिल वीकेंड यानी कि व्हाट डिड यू प्लान फॉर दी वीकेंड। मुझे तुम्हारे बालों का रंग पसंद आया। अजबनी लोन
शारिक, शारिक, यहाँ पर जो है जे रहेगा शारिक। अगर यहाँ पर मेल होगा तो हम बोलेंगे शारक, ठीक है। अजिबनी लोन, यहाँ तक तो मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए जो है एक ही रहेगी फॉर्म, लेकिन आगे जो बाल हैं उसके लिए कहेंगे शारक मेल के लिए, शारिक यानी कि फेमिनन के लिए, औरतों के लिए बोला जाएगा। अजिबनी यानी कि मुझे पसंद आया है, ठीक है। अजिबनी मुझे पसंद आया है, क्या पसंद आया है? लोन, लोन जो है रंग को कहा जाता है। शारिक यानी कि तुम्हारे बालों का रंग, ठीक है, यानी कि आई लाइक योर हेयर कलर। चलो हम कैफ़े चलते हैं। खलना नरोह लिल मगहा, खलना नरोह लिल मगहा। खलना का मतलब होता है चलो, यल्ला भी आप कह सकते हैं, यल्ला नरोह, ठीक है। और नरोह की जो है थोड़ी सी मैं वजाहत करूँगा जैसा कि हर वीडियो में करता हूँ, यानी कि हम जाएं या हम चलते हैं, वी गो यानी कि लेट्स गो, ठीक है। और लिल मगहा, ये जो आखिर में या है इसको बोलते हैं अलिफ गाइम, यानी कि खड़ा हुआ अलिफ की आवाज़ निकलेगी, ठीक है। अगर या के नीचे दो नुक्ते हैं तो हम बोलेंगे लिल मगही, ठीक है। यहाँ पर या के नुक्ते नहीं है, इसको बोला जाएगा लिल मगहा, ठीक है। लिल मगहा यानी कि जो कैफ़े होता है, कैफ़े पॉइंट होता है, उसको बोलेंगे लिल मगहा। खलना नरोह लिल मगहा यानी कि चलो हम कैफ़े चलते हैं, लेट्स गो टू दी कैफ़े। वक्त याद दिलाना मत भूलना, ला तंसीन तज़क्किरीननी बिलमौइद। अब यहाँ पर ला तंसीन यानी कि फेमिनिन के लिए कहा गया है, अगर हम मेल के लिए बोलेंगे ला तिनसा, ला तिनसा। तज़क्किर जो है याद कराने को कहा जाता है, और अगर आप किसी खातून के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे तज़क्किरीननी, तज़क्किरीननी यानी कि बिलमौइद। मौइद जो है इसका जानना बहुत ज़रूरी है, ये वक्त, अपॉइंटमेंट, कोई मुलाकात, कोई मीटिंग, कोई वादा। वैसे ये लफ्ज़ जो है वादे से निकला है, ठीक है। बिलमौइद यानी कि कोई वक्त जो है जो आपने किसी के साथ मुकर्रर किया गया है, यानी कि अपॉइंटमेंट है, तो उसको अरबिक में बिलमौइद बोलेंगे, ठीक है। ला तंसीन तज़क्किरीननी बिलमौइद यानी कि वक्त याद दिलाना मत भूलना या अपना वादा मत भूलना, ये भी आप कह सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू रिमाइंड मी ऑफ द अपॉइंटमेंट। इस अतर का नाम क्या है? शनो इसम अल अतर मालिक। और अगर आप सऊदी में बोलेंगे तो आप बोलेंगे विश इसम अल अतर हक़्क़क। हक़्क़क जो है वहाँ पर ज़्यादा बोला जाता है। और मालिच की थोड़ी सी वजाहत करूँगा। मालिच यानी कि ये UAE में बोला जाता है, अमारात में, ठीक है। व्हाट्स द नेम ऑफ योर परफ्यूम। और मालिच का मतलब यानी कि तुम्हारा, ठीक है, यूर। और हक़्क़क का मतलब भी तुम्हारा ही है, ठीक है। बस ये इलाके का फ़र्क है, ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें आप ये ना समझा करें कि दो अरबी अगर आपस में मिलते हैं तो सिर्फ अपने इलाके की ही अरबी जानते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों अपनी जो है एक ज़बान समझ जाते हैं। मालिच तुम्हारा, हक़्क़क तुम्हारा, ठीक है। बस ये इतना एक फ़र्क है। शुनो इसम अल अतर मालिच, विश इसम अल अतर हक़्क़क यानी कि तुम्हारे इस अतर का नाम क्या है। व्हाट्स द नेम ऑफ योर परफ्यूम। तुम्हारी कॉफ़ी मज़े की है, कैसे बनाई? गहवतिक लजीज़ा शलोन सवेतिहा। गहवतिक लजीज़ा शलोन सवेतिहा। सवेतिहा यानी कि कैसे बनाया, किसने बनाया। यहाँ पर शलोन की जगह केफ भी बोल सकते हैं, यानी कि योर कॉफ़ी इज़ डिलीशियस, हाउ डिड यू मेक इट। क्या हम दावत का इंतज़ाम करें? तिबीन नसवी अज़ीमा, शैल वी होस्ट अ गैदरिंग। तिबीन यानी कि चाहना, किसी चीज़ का चाहना या किसी चीज़ की ज़रूरत है। नसवी यानी कि करना, हम करें, ठीक है। नसवी का मतलब हम करें। अज़ीमा जो है किसी दावत को कहा जाता है, किसी गैदरिंग को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कोई दावत जो है उसको अज़ीमा कहा जाएगा। तिबीन नसवी अज़ीमा, जब भी हम किसी से पूछेंगे, किसी को हमने कोई गैदरिंग पे इनवाइट करना है तो ये आप इजीली बोल सकते हैं। तिबीन नसवी अज़ीमा यानी कि क्या तुम चाहती हो कि हम जो है कोई गैदरिंग करें, कोई दावत करें, ठीक है। शैल वी होस्ट अ गैदरिंग। कल बहुत थका देने वाला दिन था। अम्स कान योम मुतअब। अम्स कान योम मुतअब। अब देखिए ये वो जुमले भी हैं जो कि हम डेली रूटीन में बोलते हैं, इसमें फेमिनन और मेल का कोई दखल अंदाजी नहीं है, ठीक है। ये आप जुमले रेगुलर किसी मेल या फीमेल को आराम से बोल सकते हैं। यानी कि यस्टरडे वाज अ टायरिंग डे। अम्स का मतलब कल जो गुजर चुका है, कान यानी कि था, योम दिन को बोलते हैं, मुतअब यानी कि थका देने वाला,
ठीक है। बच्चों के साथ तुम्हारा क्या हाल है, शलोन हालिज माल अयाल। और अगर आप सऊदी में बोलेंगे तो आप बोलेंगे केफ हालिक माल अयाल। अब यहाँ पर एक छोटा सा यानी कि बसीत हल्का सा फ़र्क है। केफ हालक मेल के लिए कहेंगे, हालिक फीमेल के लिए कहेंगे। हाउ आर यू डूइंग विद द किड्स, ठीक है। हमें अम्मी के लिए तोहफ़ा ख़रीदना है, नबी निश्तरी हदिया ले उम्मी। हमें अम्मी के लिए तोहफ़ा ख़रीदना है। नबी यानी कि कोई चीज़ का करना है या चाहिए, ठीक है। निश्तरी यानी कि ख़रीदना चाहिए। हदिया तोहफ़े को कहते हैं। ले उम्मी यानी कि अपनी वालदा, अपनी माँ के लिए। वी नीड टू बाय अ गिफ्ट फॉर मॉम। हम कब बाहर जाएंगे, व्हेन आर वी गोइंग आउट। मता नतला, मता नतला, या आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं मता नखरुज। मता नखरुज यानी कि बाहर जाना, कोई एग्जिट करना, आउटलेट, ठीक है। तुम्हारे पास कोई नई चीज़ है, अंदिज शै जदीद। अगर आप सऊदीया में हैं तो आप बोलेंगे फ़ी शै जदीद अंदक, अंदक। अब अंदक और अंदक यहाँ पर पता चलेगा कि मेल है या फीमेल है। अंदिक यानी कि ज़ेर लगा दी दाल के नीचे तो बनेगा फेमिनिन के लिए, और अगर आप दाल पर ज़बर लगा देंगे तो वो बनेगा मेल के लिए, यानी कि डू यू हैव समथिंग न्यू। आज मौसम खूबसूरत है, अलजो अल्योम जमील, द वेदर इज़ ब्यूटीफुल टुडे। वैसे आप हेलो भी बोल सकते हैं, हेलो यानी कि खूबसूरत है या अच्छा है, ठीक है। ये वो जुमले हैं जो कि ख़वातीन आपस में भी बोल सकती हैं और मर्द हजरात भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कुछ चंद जुमले मैंने और भी बीच में ऐड कर दिए हैं ताकि आप लोग जो है आपस में इस तरह से ईज़िली गुफ्तगू कर सके, अपने कम्युनिकेशन को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन कर सके। क्या तुम सिनेमा जाना चाहती हो, तिबीन तरोहीन अल सिनेमा, कि डू यू वांट टू गो द सिनेमा। अब यहाँ पर अगर आप मेल के लिए कहेंगे तो आप बोलेंगे तिबा तरोह अल सिनेमा, ठीक है। तिबीन फीमेल के लिए कहा जाएगा। तरोहीन, तरोहीन अक्सर ये लफ्ज़ जो है आप लोगों के जहन से निकल जाता है, सिर्फ रोह 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 जो है जहन में रह जाता है। बाकी तरोह जो है, तरोह तब कहा जाएगा जब हम तुम कहेंगे या तुम्हारे कहेंगे, ठीक है। तरोहीन यानी कि तुम जाओगी। तिबीन चाहती हो, और सिनेमा को सिनेमा ही कहा जाता है, ठीक है। डू यू वांट टू गो द सिनेमा। क्या तुम्हें बावर्ची खाने में मदद चाहिए, महताजा मुसाइदा लिमक्तब, महताजा मुसाइदा बिल मतबख, यानी कि तुम्हें ज़रूरत है या तुम्हें चाहिए। मुसाइदा जो है वो हेल्प को कहा जाता है, मदद को। बिल मतबख यानी कि बावर्ची खाने में, ठीक है। डू यू नीड हेल्प इन द किचन। हम छुट्टी के लिए कहाँ बुकिंग करें। जैसे हम कहीं जाना चाहते हैं, कोई गैदरिंग में जाना चाहते हैं, तो हम कहेंगे वेन नहजिज लिल अतला, वेन नहजिज लिल अतला, यानी कि वेयर शुड वी बुक फॉर द वोकेशन, ठीक है। वोकेशन जो है अतला बोलते हैं, ठीक है, छुट्टी को, जैसे इजाज़ा बोलते हैं, ठीक है। लिल अतला जो है वो भी छुट्टी को ही कहा जाता है, वोकेशन को। नहजिज यानी कि बुकिंग को, जब भी किसी चीज़ पे कब्ज़ा करना है, अपने लिए बुक करना है, तो हम बोलेंगे नहजिज, और ये हमारे लिए बोल जाएगा, हम बुकिंग करेंगे, ठीक है। वेन का मतलब तो आपको पता ही है कि कहाँ। अच्छा, तुम्हारे ख़ानदान का क्या हाल है, इंजैन शलोन आलतिच। आलतिच यानी कि तुम्हारे ख़ानदान वाले, तुम्हारे घर वाले, ठीक है। इंजैन यानी कि अच्छा। अगर हम इसको सऊदी में बोलें तो हम बोलेंगे केफ आइलतकुम, आइलतकुम यानी कि तुम्हारे घर वाले, यानी कि बहुत सारे, यानी कि जमा के लिए कहा गया है। अगर हम सिर्फ घर वाली का पूछें तो हम बोलेंगे तैब केफ आइलतक, ठीक है। काफ और जीम का ही है सारा खेल, ठीक है। अगर आप यूएई में है तो जीम बोलेंगे, अगर सऊदीया में है तो आप बोलेंगे तैब केफ आइलतकुम, ठीक है, या केफ हाल आइलतक, ठीक है, यानी कि ओके हाउस यूर फैमिली। तो ये तब कहा जाएगा जब आप काफ़ी अरसे बाद किसी को मिलते हैं, किसी का हाल वाल पूछते हैं, तो ये उस मौके पर कहा जाएगा। मैं ये दुकान आजमाना चाहती हूँ, अभी अजर्रब हाज़ल महल। अभी यानी कि मैं जो है फ़ीमेल के लिए कहा जाएगा, ठीक है। अजर्रब का मतलब जो है आजमाना होता है, ट्राई करना होता है, चेक करना होता है। हाज़ल महल यानी कि ये दुकान, ये बकाला, ये शॉप, ठीक है। आई वॉन्ट टू ट्राई दिस शॉप। आज का मंसूबा क्या है, शनो बरनामिज अलियोम, व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे।
शनो की जगह आप एच भी लगा सकते हैं। और बरनामिज जैसा कि मैंने आपको बताया था मंसूबा प्रोग्राम को कहा जाता है। ठीक है, अल-यौम यानी कि आज। हमें सब्ज़ी और फल ख़रीदने की ज़रूरत है। नहताज नश्तरी खुदरा व फाकिह। खुदार जो है, खुदरा जो है वो सब्जियों को कहा जाता है, फाकिह जो है वो फलों को कहा जाता है। यानी कि वी नीड टू बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मुझे तुम्हारे घर की सजावट पसंद आई। अब ये अक्सर ख़वातीन को ही बोलती हैं, तो हम अरबिक में बोलेंगे अजबनी अल-देकोर माल बेतिच। ये यूएई में कहा जाएगा। अगर आप सऊदीया में हैं तो आप कहेंगे अजबनी अल-देकोर हक बेतकुम, या बेतक या बेतिक। ठीक है, बेतक मर्द के लिए, बेतिक यानी कि ज़ेर लगाएंगे तो वो फेमिनन के लिए होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर आप यूएई में हैं तो हम कहेंगे अजबनी अल-देकोर माल बेतिच या तिज। ठीक है, जीम या चे दोनों बोलते हैं। आई लाइक यूर होम्स डेकोरेशन। वैसे डेकोर जो है अरेबिक में भी डेकोर ही बोलते हैं। ठीक है, आज तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से बनवाए या कहाँ बनवाए। शारकी अल-यौम मर्रा हिलो वेन सवेतिहा। ठीक है, शारकी अल-यौम मर्रा हिलो वेन सवेतिहा। शारकी यानी कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पहले भी एक जुमला हमने बालों पर बनाया है, फेमिनिन के लिए कहेंगे शारकी। ठीक है, अल-यौम यानी कि आज, मर्रा हिलो यानी कि बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे लग रहे हैं, वेन यानी कि कहाँ, सवेतिहा सवेती या सवेतिहा यानी कि कहाँ से बनवाए हैं। ठीक है, योर हेयर लुक्स सो नाइस टुडे, वेयर डिड यू गेट इट डन। बाद में मुझे कॉल करना ना भूलना। जैसे कोई शख्स जाने लगता है या कोई खातून जाने लगती है तो हम अरबिक में बोलेंगे ला तंसीन ततस्सीन बी बादिन। ला तंसीन, जैसे कि पहले भी 2-3 जुमले गुजर चुके हैं। ला तंसीन यानी कि मत बोलना फेमिनिन के लिए। ठीक है, ततस्सीन बी बादिन यानी कि ततस्सिल जो है फ़ोन को कहा जाता है, कॉल को। ठीक है, और बी यानी कि करना, बादिन यानी कि बाद में। अब अगर हम इसको जो है मेल के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये दूसरा सवाल है। करंटली इसको नोट कर लें। अगर आपको इस पर जुमला बनाना आता है कि मेल के लिए क्या कहेंगे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसकी जो मज़ीद जो इसकी तालील होगी या इसकी करेक्शन होगी वो मैं बाय कमेंट कर दूँगा। डोंट फॉरगेट टू कॉल मी लेटर। ये वीडियो देखो शानदार है। शोफ़ी हाज़ल वीडियो रहीब। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि मेरी वीडियोस देखें कि ये बहुत रहीब हैं, बहुत शानदार हैं। जब भी आप किसी चीज़ की तारीफ़ करने लगेंगे तो वो कोई चीज़ भी हो सकती है। जैसे हम कहते हैं ये गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है, तो हाज़ सयारा मर्रा रहीब यानी कि ये बहुत शानदार है। शोफ़ी यहाँ पर जो है इसमें थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। शोफ़ जो है हमेशा मर्द के लिए होगा। शोफ़ी जब भी आप किसी खातून, फेमिनन, बच्ची के साथ बोलेंगे तो आप कहेंगे शोफ़ी हाज़ल वीडियो रहीब यानी कि ये देखो वीडियो शानदार है। लुक एट दिस वीडियो, इट्स अमेजिंग। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तकरीबन 30 जुमले थे जो कि बड़े ही खूबसूरती के साथ मैंने डिज़ाइन किए हैं। अगर आपको वीडियो में कोई बात समझ आई है तो ज़रूर बताइएगा, अगर समझ नहीं आई तो भी बताइएगा ताकि मैं इसकी मज़ीद वजाहत आपको कमेंट्स के ज़रिए कर दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखा करें क्योंकि ये वीडियोज़ जो है आप लोगों के लिए बड़ी ही मेहनत से बनाई जाती हैं। अगर कोई चीज़ समझ में आती है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी आपकी तरह अरेबिक सीख सकें और अपने रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उसको बेहतर से बेहतरीन कर सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने हमसायों को ख्याल रखिएगा। ओके, मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।